4 5 weeks I was from Hyderabad. तो 4 5 सप्ताह थे मैं हैदराबाद में था and I was attending one assembly. जब वहाँ पर एक मंडली में जा रहा था. And what I noticed was the same people were worshiping every week. और मैंने क्या देखा कि वही लोग हर सप्ताह आराधना कर रहे थे. There was almost no new people who were worshiping. और कोई नया नहीं था जो आराधना करे. So last Sunday I told them. बात मैंने उनसे कहा that all should take part in that. सभी को आराधना में भाग लेने का आवश्यकता है. Because there is a book of Hebrews, जो इब्रानी पत्री में and chapter 2, दूसरा अध्याय. Want all of you to read this here. आप सबके साथ इस वचन को पढ़ें. इब्रानी पत्री दूसरा अध्याय. And verse 12. So, all those who are Bibles can be open to this chapter, and we all together will read this. 304 number page है. Hebrews chapter 2 and verse 12. इब्रानी पत्री उसका 12 पर सब एक साथ मिलकर के इसको पढ़ेंगे. saying कहता है So the author says, I will declare thy name unto my brethren. Because some people think we are worshiping at home. We do it also. What is the necessary way that the Bible says that you have to worship amongst the church? Especially for those who have never opened their mouths in worship during this बात को ध्यान रखें. And then it's written in the midst of the church. और फिर लिखा सभा के बीच में तेरा भजन गाऊंगा. I will sing your praise, Lord, in the midst of the church. प्रभु कलीसिया के मध्य में सभा के मध्य में तेरी उपासना करूंगा, आराधना करूंगा. The book of Matthew's Gospel. समाचार chapter 18 verse 20. The Lord Jesus said, when 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in their midst. क्योंकि प्रभु ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ. The Lord is with us even when we are alone. जब हम अकेले तब भी प्रभु हमारे पास है. But He has promised His presence in a very special way when we gather together. और जब हम इकट्ठे होते हैं प्रभु की खास रूप से हमारे मध्य में रहता है. 2 or 3 are gathered together in my name. जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं बात तो बीच उपस्थित हों. Very essential to come to the house of God. Number 1, पहली बात प्रभु के भवन में आना बहुत जरूरी है. And number 2 is to worship Him in the presence of God's people in the church. प्रभु के लोग की उपस्थिति में सभा के मध्य में प्रभु का आराधना करना जरूरी है. Similar expression we also find in the Old Testament. ऐसी बातों पुराने नियम में भी पढ़ते हैं. We'll read it for you and listen to it. अब ध्यान से सुनें. In the book of Psalms, भजन संहिता and 22, 22 अध्याय and verse 22. भजन 22 और 22 में पढ़ते हैं. इसको ध्यान से सुनें. भजन संहिता 22 अध्याय उसका 22 पद. मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूंगा. सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूंगा. बड़ा स्पष्ट लिखा, सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूंगा. सेम शाम नाउ वर्स 25. अब इसी 22 पद में उसका 25 पद देखें. बड़ी सभा में तेरा स्तुति करना तेरे ही ओर से होता है. मैं अपने प्राण को उससे रखने वालों के सामने पूरा करूंगा. The psalmist again says, with the great congregation फिर कहते हैं बड़ी सभा के बीच में तेरा स्तुति करूंगा. Today being the Lord's Day, and later on request for the make a special announcement that those who are never open their mouth in worship, to be listen to the word,
and then you will complete worship. अगर वचन सुन लेते हैं उसके पश्चात आप ध्यान से जो आपने वचन सुना है उसके आधार पर आप अपनी आराधना प्रभु के सम्मुख लाएं। Especially those who have never ever worshipped before. जिन लोगों ने पहले कभी आराधना नहीं किया है, we all have children. हम सबों के बच्चे हैं, and there is a time when they start speaking. एक समय आता है जब वो बोलना शुरू करते हैं। They just say पाप कहते हैं, and their mother says, तो माँ कहेगी बच्चे पापा कहने लगे। हाँ, देखो वो बच्चा जो है पापा का नाम लेने लग गया। Actually, parents, we are so happy to hear the broken words of our own children, of our Lord and Heavenly Father. हम इस पृथ्वी के माता पिता होकर के जब अपने बच्चों के टूटे-फूटे शब्दों को सुनकर के खुश होते हैं, हमारा स्वर्ग पिता कितना अधिक प्रसन्न होगा जब हम उसका आराधना करेंगे। So I recommend all of you who are born again, who have known the Lord as their personal Savior, please do not hesitate when opening your mouth to worship the Lord. जिस किसी ने भी उद्धार पाया है, प्रभु का अपने जीवन में अनुकरण किया है, तो सबके सबों से मेरा निवेदन है अपना मुंह खोल करके जरूर आराधना करें। Now, in order to focus your thoughts, आपके विचारों को केंद्रित करने के लिए you always want to read a little portion from the Word of God. हम प्रभु के वचन में से कुछ पढ़ना चाहते हैं, and also to meditate on the Word of God. और वचन के ऊपर हम मनन और ध्यान करें, so that your eyes are focused to worship the way we have heard from the Word of God. ताकि जो वचन हमने सुना है उसके आधार पर प्रभु का आराधना करें। तो we turn to the book of Deuteronomy, विवरण की पुस्तक 24, इसका 24 अध्याय। Deuteronomy chapter 24, विवरण उसका 24 अध्याय। We will read 2 verses 3, दो पद पढ़ेंगे, verses 18 और 19। 24 अध्याय, विवरण उसका 18 और 19 पद पढ़ लेंगे। हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। 24 अध्याय, verses 18 और 19, 18 और 19 पद। और सब एक साथ पढ़िए। और इस पर एक नाम हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान और अनुग्रहकारी परमेश्वर, Lord, what a wonderful thing it is for every believer to remember and remind ourselves that the God whom we have come to worship is a true God, he is a living God. कितना अद्भुत है प्रभु, हम सब एक साथ मिल करके एक दूसरे को स्मरण दिलाएं कि जिस परमेश्वर को हम आराधना करते हैं वो जीवित परमेश्वर और अद्भुत परमेश्वर है। He came to this world as a man. इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके आया। He lived a holy life. एक पवित्र जीवन बिताया, and he gave up his life on the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस के ऊपर उसने अपना प्राण दे दिया। He gave his body to be broken and shed his precious blood, sinless blood, holy blood, for the remission of our sins. अपने देह को तोड़े जाने के लिए, बलि होने के लिए, निष्पाप निष्कलंक अपना बहुमूल्य लहू पापियों के पापों को क्षमा करने के लिए उसने बहा दिया। So that the precious blood of the Lord Jesus can cleanse every human being of all sin and give us the gift of forgiveness and eternal life. ताकि प्रभु यीशु मसीह को पवित्र लहू तमाम पापियों के पापों को क्षमा करके और हमें उस के द्वारा अनंत जीवन का वरदान हमें दे। Lord, we thank you for every brother and every sister who has come so far. हर एक भाई हर एक बहन जो अब पहुंचे प्रभु, धन्यवाद देते हैं। Those who have come from different parts of Delhi and those who have come from Manesar. जो दिल्ली के अलग अलग भाग से और मनेसर से हमारे मध्य में आए हैं। And we also pray for those who are yet on their ways to hasten their steps so that they also may join us. उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो रास्ते में हैं उनको शीघ्रता से हमारे मध्य में लाएं। Lord, we once again want to remind ourselves
Lord, your promise in Matthew 18:20. मत्ती 18:20 को प्रभु जो आपने प्रतिज्ञा की है, फिर हम स्मरण दिलाते हैं। Lord, we want your holy presence to be with us this morning आपके पवित्र उपस्थिति प्रभु आज सुबह हमारे संग बनी रहे and to thou energize us by the Holy Spirit पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप हमें उभारें and keep our thoughts focused on the person of the Lord Jesus. हमारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में केंद्रित रखें। We bind all the powers of darkness, the seen and the unseen works, in the mighty name of Jesus. तमाम देखिए अनदेखी अंधकार शक्तियों को यीशु के महिमा के नाम में प्रभु उसको बांध देते हैं। And Lord, we both bring ourselves under the sprinkling of the blood of the everlasting covenant. हम अपने दोनों को प्रभु आपके उस बहुमूल्य लहू के छिड़काव के अधीन लेके आते हैं। Wash us and cleanse us from every defilement, so that we may be vessels meet for the Master's हर use. एक अशुद्धता से प्रभु हमें धोएं शुद्ध करें ताकि हम अपने स्वामी के प्रभु योग्य पात्र बन सकें। We humble ourselves in your holy presence. अपने आप को प्रभु आपके पवित्र उपस्थिति में नम्र करते हैं। And we ask this prayer in the highly exalted name of our Lord and our blessed Savior, the Lord Jesus Christ. इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में इस प्रार्थना मांगते हैं। Amen. Now, what we have read from the book of Deuteronomy this morning, व्यवस्था विवरण से हमने क्या पढ़ा आज सुबह? I have to tell you in verse 18, thou shalt remember. 18 पद में लिखा है कि तुम उसको याद रखना। So today morning message is only 3 words. 3 शब्द हैं आज सुबह के संदेश के लिए। Thou is Old English. तू जो है वो आप जो है पुराना अंग्रेजी है। Of course, in Hindi it is good. Thou shalt remember. तू उसको स्मरण रखना। You shall remember. तुम उसको स्मरण रखना। So whom were these words addressed to? कि किन को ये शब्द बताए गए? They were addressed to the children of Israel. इजरायली लोगों को बताया गया। And where were these words spoken to the children of Israel? ये शब्द इजरायली लोगों को कहाँ पर बताए गए थे? In the book of Deuteronomy, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में chapter 1, पहला अध्याय and in verse 1, और पहला पद में the Bible tells us बाइबल में लिखा है that the children of Israel were on this side of Jordan. इजरायली प्रजा जो है यरदन के इस ओर था। Or in other words, या दूसरे शब्दों में they had left Egypt. मिस्र को छोड़ दिया उन्होंने। Now they were on the way to Canaan. अब वो कनान देश की ओर थे। So they had come up to the river Jordan. अब वो यरदन नदी के तक पहुंच गए थे। The moment they crossed Jordan, जैसे ही वो यरदन को पार कर गए, they would be in Canaan. वो कनान में प्रवेश करेंगे। So the necessity why God wanted Moses to repeat the law for the second time, इस कारण परमेश्वर ने कहा कि मूसा इस व्यवस्था को दूसरी बार उनको स्मरण दिलाएं। see the title of the book in English, it is Deuteronomy. व्यवस्था विवरण का जो शीर्षक है इस पुस्तक का, and the meaning comes from two different Greek words. जो अंग्रेजी में जो शब्द ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण उसको 2 यूनानी शब्दों से मिला हुआ है। One is deutero, एक तो व्यवस्था है which means second, और दूसरा and the other word is nomos, और दूसरा शब्द नोमोस, which means the law. जिसका अर्थ है What is this? व्यवस्था। What is the second law? ये दूसरा व्यवस्था क्या है? See, the first time the Lord gave the law through Moses at Mount Sinai. पहली बार परमेश्वर ने व्यवस्था दी सिनाई पहाड़ के ऊपर, And that is recorded for us in the book of Exodus chapter 20. निर्गमन 20 अध्याय में यह लिखा हुआ है। Now the older generation, they passed away one after the other. पुराना जो पीढ़ी थी वो एक के पीछे एक सब चले गए मर के। Because in the book of Numbers गिनती की पुस्तक में and chapter 13, और 13 अध्याय में is a place called as Kadesh Barnea. कादेश बर्नेया करके एक स्थान है। The Lord wanted them to believe that Canaan was already promised and given to them. They only needed to possess it. उनको ये विश्वास था कि कनान तो उनको दे दिया गया है, उनको केवल जा करके उसका कब्जा करना है। So people began to murmur. लोग आपस में फुकराने लगे, To tell one another, एक दूसरे को कहने लगे, Lord had promised, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, we don't know whether we can enter or not. पर हमें तो नहीं मालूम कि क्या हम प्रवेश कर पाएंगे So कि नहीं। Moses was fed up with this murmuring. मूसा उनके फुकराने से थक गया था। So he said, choose you one man from every tribe. उसने कहा हर एक
गोत्र में से एक व्यक्ति को चुन लेना, and they were sent as spies into Canaan. और उनको कनान देश में जो है पता करने के लिए भेजा गया। Out of the 10 people, only 2 people believed in God. 10 में से केवल 2 ने परमेश्वर पर विश्वास किया। 10 people said, 10 लोगों ने कहा, "Oh, there are giants there. अब वहां तो बड़े बड़े राक्षस हैं, People are so tall, बड़े बड़े लंबे चौड़े हैं लोग, and before them और उनके सामने we are like tiddy, the grasshopper. हम तो टिड्डी के समान है। The moment they fall on us, we will become chutney. जैसे वो हमारे ऊपर गिरेंगे हम तो फिसक जाएंगे। So we will not be able to conquer them. इसलिए हम उनके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। But there were 2 people, पर 2 लोग ऐसे थे, Joshua and Caleb. योशुआ और कालेब, They did not look at themselves, उन्होंने अपने आप को नहीं देखा, but they looked at God. उन्होंने परमेश्वर को देखा। God who had parted the Red Sea. परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को अलग अलग किया, God who had given manna from heaven. परमेश्वर जिसने स्वर्ग से उनको मन्ना खिलाया, God who gave them water out of the rock. परमेश्वर ने चट्टान में से उनको पानी पिलाया। That great and mighty God is with us. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे संग है। So they said, surely we will be able to take Canaan. उन्होंने कहा सचमुच हम कनान को अपने कब्जे में ले पाएंगे। And the Lord told them, अब परमेश्वर ने उनसे कहा, all those unbelieving people, तमाम जो अविश्वासी लोग थे, they will not enter into the land of Canaan. वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। They will all die in the wilderness. वो सब जंगल में मर जाएंगे। So that first generation of Israelites who left Egypt, they died one by one. जो पहली पीढ़ी जो इजराइल से निकली थी कनान देश में प्रवेश करने के लिए, वो सब एक करके मर गए। So only these younger people who were more than 20 years old, केवल वो जो जवान थे जो 20 साल की उम्र के आसपास के और थे, or maybe less than 20 years old, या 18 से थोड़े से कम होंगे, they would enter into the land of Canaan. वो कनान देश में प्रवेश करेंगे। And that was what God had destined for them. यही परमेश्वर उनके लिए तय कर रखा था। So the necessity of giving the law for the second time, the Lord said, these are a new generation, so they should be told my law again. क्योंकि ये नई पीढ़ी थी, तो परमेश्वर ने कहा इनको जो दोबारा व्यवस्था के बारे में बताया जाए। Or in other words, the Lord was telling all those who are going to enter into the land of Canaan, a new generation of people, to them these words were spoken. या दूसरे शब्दों में नई पीढ़ी जो कनान देश में प्रवेश करने वाली थी, उनको ये शब्द बताए गए थे। What did he say? उन्होंने क्या कहा? You people should remember. तुम लोगों को याद रखने की आवश्यकता है। Beloved, it's very important. ये बहुत जरूरी है। If you read the entire book of Deuteronomy, यदि व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ें, 14 times the Lord was telling the children of Israel, thou shalt not forget. Or he also said, thou shalt remember. These 2 words appear in the book of Deuteronomy. व्यवस्था विवरण की पुस्तक में ये 2 बातें बार बार लिखी गई हैं, तुम भूलना नहीं, तो स्मरण रखना। You always had to remember, they were to remember. हमेशा उनको याद रखने की आवश्यकता थी। Now the question is, अब सवाल ये उठता है, what should they remember? उनको क्या स्मरण करना है? These are also given in the same verse. उसी पद में उनको बताया गया है। Moses, the Lord told Moses, thou Israel must remember that you were a bondman. इस बात को याद रखना है कि तुम दास थे। The book of Deuteronomy chapter 24 and verse 18. व्यवस्था विवरण 24 अध्याय उसका 18 पद। They were bondmen in Egypt. तुम मिस्र में दास थे। So beloved, as we come for worship this morning, this is one thing the Lord is saying. Remember at one time you were bondmen. जब आराधना के लिए सुबह आए, इस बात को याद रखना, पहले तुम लोग दास थे। The meaning of bondmen, दासदार किया है, people who were bound. वो लोग जो बंधे हुए, they are called as bondmen. उनको जो है दास कहा जाता है। Or if you want another word, दूसरा कोई शब्द चाहते हैं, you were slaves. तुम गुलाम थे। Slaves to whom? किसके गुलाम थे? Slaves to Pharaoh. फिरौन के गुलाम थे। Slaves to people attached with Pharaoh. जो लोग फिरौन के साथ लगे हुए थे, वो सब। You have no liberty to do what you like. तुमका अपना कोई आजादी नहीं था कि तुम जो चाहो वो कर सको। You were only supposed to do what Pharaoh told. तुम्हें केवल वही काम को करना था जो फिरौन ने तुमको कहा। They had become slaves. वो गुलाम हो गए थे। They were bondmen. वो दासत्व में थे। Now that was our condition. यही हमारी हालत थी। Not physically, शारीरिक तौर से नहीं, but physically.
not physically, but spiritually. हाँ, आत्मिक तौर से। For example, I take the James' hands मान लीजिए भाई मेरे हाथों में ले लेते हैं and put it like this. और इस तरह से रख देते हैं And एक छोटा सा रस्सा लेकर यूं बांध दो. और एक रस्सी लेकर के दोनों हाथ को बांध देते हैं। And then I tell the James, आप अपने आप को फ्री कर लीजिए और फिर कहते हैं भाई जेम्स अपने आप को आजाद कर लेना, फटाक से. एकदम से जो है तोड़ देते हैं। और 50 बार लपेटने से यदि 50 बार इसको लपेट दिया जाए रस्सी से, कोशिश तो बहुत करेंगे कोशिश तो बहुत करेंगे मगर कुछ होने वाला नहीं. लेकिन कुछ होगा नहीं। Similarly, beloved, इसी in the रीति से life of every human being, this is what the devil has done to us. हर एक मनुष्य के जीवन में शैतान ने कुछ ऐसा ही किया है। He has bound us with anger, उसने गुस्से से हमें लपेट दिया है, bound us with jealousy, ईर्ष्या से हमें bound us लपेट with envy, और जलन से भर दिया है, and bound us with bad thoughts, और बुरे विचारों से हमें भर दिया है, bound us with bad words, और गलत शब्दों से हमें भर दिया, bound us with bad deeds, और गलत कामों से हमको बांध दिया है, and with so many other evil habits. और बहुत सारे बुरे बुरे कारणों से हमको बांध रखा है। Few months back, I was coming from Ghaziabad, कुछ महीने पहले मैं गाजियाबाद से आ रहा था, and on the way I saw a man रास्ते में मैं एक को देखा, एक व्यक्ति who को, was wearing a nice black pant, एक अच्छा काला से जो है उसने पैंट पहन रखा था and he was wearing a white shirt, और एक सफेद कमीज पहन रखा था and he was wearing a tie. और एक टाई बांध रखा था। And on the roadside, और सड़क के किनारे जहाँ पर वो गंदा पानी जम जाता है कई बार, जहाँ गंदा पानी जमा रहता है, I found him lying there. मैंने देखा कि वो वहाँ लेटा हुआ है। So I said to myself, मैंने अपने आप से कहा, how could such a good-looking person lie in this kitchen? ऐसा अच्छा भला दिखने वाला व्यक्ति ऐसे कीचड़ में कैसे लेटा हुआ है? Then I said to फिर myself, मैंने अपने आप से कहा, या ये आदमी शराब पी लिया होगा या तो इसने शराब पी रखी है या नशा कर दिया होगा. या उसने नशा कर लिया। Beloved, what makes a human being, instead of lying in a good bed in your own home, makes him to lie in that kitchen? हाँ, एक अच्छा व्यक्ति अच्छा भला अपने घर में आराम करने के बजाय उसको क्या जरूरत थी कि वो जाकर वहाँ कीचड़ में लेट जाए। Perhaps when he gets up, जब वो उठेगा, all his back white shirt, हाँ, तमाम उसका जो सफेद कमीज जो उसने पहन रखी, full of kitchen. हाँ, पूरा कीचड़ से भरा है। And the wife and children, they say, you went for work with a tie also. Now what happened to you? हाँ, पत्नी कहेगी तुम तो टाई बांध करके गया था अपने दफ्तर में, तुम्हें क्या हो गया? And then he would say, फिर वो कहेगा, मैं शराब पी लिया था, मैं तो शराब पी ली, उसका गुलाम बन गया. मैं उसको गुलाम बन गया। Beloved, not only to the शराब, न केवल शराब के लिए, many evil habits the devil puts on each one of us. बहुत सारी बुरे बुरे बातें जो है मनुष्य के जीवन में शैतान उंडेल देता है। Each one of us, हम में से हर एक के जीवन में, from myself to that last brother Moses, चाहे मैं हूँ, चाहे आखिर में भाई मोसेस हो, we were bondmen. हम सब के सब गुलाम We थे, were दासत्व में। slaves to the evil one. हम दुष्ट के जो है गुलाम थे। That was our condition. ये हमारी हालात थी। And the spiritual meaning of Egypt, और मिस्र का जो आत्मिक जो उसका अर्थ है, why I am saying this is, you may say, brother, we are never in Egypt. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप तो कहेंगे मिस्र से मेरा क्या लेना देना, हम तो कभी थे नहीं। See, in the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में we give the spiritual significance of Egypt. मिस्र के विषय में आत्मिक उसका अर्थ दिया गया है In the book of Revelation and chapter 11, प्रकाशित वाक्य उसकी 11 अध्याय में and verse 8. 8 पद। Kindly listen in English, in Hindi, please. हिंदी Book में of Revelation, chapter 11 and verse 8. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय उसका 8 पद। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सोदोम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। So here John is talking about Egypt. यहाँ पर यूहन्ना जो है मिस्र के विषय में कहता है, It was not a literal Egypt, वास्तव में वास्तविक मिस्र तो नहीं था, because as you all know, the Lord was crucified in Jerusalem. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में क्रूस पर चढ़ाया गया। So John is giving us the spiritual significance of Jerusalem. Jerusalem stands for the place where the Lord was crucified. He calls it as Egypt.
हाँ, जहाँ मिस्र को जो है उसके साथ संकेत देता है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया यरूशलेम में। So a system which is against the Lord and his salvation is Egypt. हाँ, ऐसा जगह जहाँ पर क्रूस पे चढ़ाया गया प्रभु यीशु मसीह को, जहाँ पर हम अ, उद्धार से दूर रहते हैं, उसको मिस्र कहा जाता है। It was not literally Egypt, but the system which is against the Lord Jesus Christ, that was called Egypt. वास्तविक तौर से मिस्र नहीं था, लेकिन ऐसा वहां पर सिस्टम जहां पर जो है वो उसके खिलाफ था मसीह के। So as we look back into our own lives, यदि हम अपने जीवन में पीछे मुड़कर maybe देखें, we were born in good families, हो सकता है हमने अच्छा परिवार में जन्म maybe लिया हो, very strict in our own rituals. अपने रीति रिवाज हम बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे। Many times the gospel was given to us. कई बार हमारे पास उस For our sake, मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया हमारे लिए, for our salvation, हमारे he उद्धार gave के his लिए, body to be broken, blood to be shed. हमारे उद्धार के लिए उसने अपने शरीर को तोड़े जाने के लिए, अपने बहुमूल्य लहू को बहाए जाने के लिए दे दिया, But we did not believe it पर हमने विश्वास नहीं किया, because we were in a system which opposed the Lord Jesus Christ and his great salvation. क्योंकि हम ऐसे परिस्थिति में थे, ऐसे माहौल में थे जहां पर प्रभु यीशु मसीह का उद्धार के विरोध में लोग थे, We were bondmen. हम गुलाम थे। And if you turn to the book of Exodus, लेकिन निर्गमन की पुस्तक देखें, there is a very clear picture about the slavery of the children of Israel in Egypt. इजराइल लोगों के गुलामी के विषय में लिखा है। The book of Exodus, please, निर्गमन की पुस्तक and chapter 2, दूसरा अध्याय and the last verses. और आखिर पद में लिखा है, Book of Exodus is the second book in the Bible, और दूसरा पुस्तक है बाइबल में निर्गमन की पुस्तक, and verse 23 और उसका 23 पद, दूसरा अध्याय 23 पद, and verse 24. 23 और 24 पद All together, please. सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक दूसरा अध्याय 23 और 24 पद। And it came और to दिनों के pass बीतने बाद मिस्र का राजा मर गया, the king of Egypt died. इजराइल Children of कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर they cried. हाय भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई, परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। The children of Israel, they sighed. हाँ, इजराइल लोग जो है विलाप कर रहे थे, मुझे लगता है हिंदी में लंबी 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 सांस लेकर हाँ, हाय भरने they were लगे। taking लंबी लंबी सांस. हाँ, लंबी लंबी सांस ले रहे थे। Why? क्यों? Because of the bondage. गुलामी के कारण, Bondage of Pharaoh. फिरौन की गुलामी में थे, And then they cried also. और फिर वो आहें भरने लगे। They were so sad the way they were treated, they began to cry. इस जिस रीति से उनके साथ बर्ताव किया गया उसके कारण वो रोने लगे। And thirdly, in verse 24, it says, God heard their groaning. 24 में लिखा, परमेश्वर ने उनकी कराहना को सुना, They sighed वो आहें भरने लगे and they cried और फिर रोने लगे and they began to groan. और फिर कराहने लगे। This was their sad condition in Egypt. मिस्र में उनकी दयनीय हालत थी, But the Lord did not keep quiet. लेकिन प्रभु चुप नहीं रहा। The Bible tells us in verse 24, बाइबल बताती है 24 पद में, and God heard परमेश्वर ने सुना and God remembered. और परमेश्वर को स्मरण किया। And verse 25, 25 पद, and God looked upon the children of Israel, और परमेश्वर ने इजराइल लोगों पर दृष्टि किया and God had respect unto them. और उन पर चित्त लगाया। So these four things God did. ये चार बातें प्रभु ने कही उनके साथ। God heard their groaning. परमेश्वर ने उनकी आहों को सुना, God remembered his covenant. अपने वाचा को उसने स्मरण किया, God looked upon the children of Israel, परमेश्वर ने इजराइल लोगों के ऊपर दृष्टि किया and God had respect unto them. और परमेश्वर ने उन पर चित्त लगाया। Now we come back to the book of Deuteronomy chapter 24. व्यवस्था वरन 24 अध्याय देखें, There the Lord tells us the second thing. यहाँ दूसरी बात प्रभु बताता है, They were not only bondmen, ना केवल वो गुलामी थे, and in verse 18 it says, and the Lord God redeemed them. 18 पद में लिखा, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया है। Lord God redeemed them. तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ाया है। The Lord did not keep quiet. प्रभु चुपचाप नहीं रहा। He told the children of Israel, इजराइल लोगों से कहा, you need not be in Egypt for all time. हमेशा तुम्हें मिस्र में रहने की आवश्यकता नहीं, You need not be bondmen for all time. हमेशा गुलामी में दासत्व में रहने की Now जरूरत the time had come
for your redemption from Egypt. अब समय आ गया है कि तुम मिस्र से गुलामी से तुम छुड़ाए जाओ, But it will not be on your term, पर तुम्हारे शर्तों पे नहीं होगी, it will be on my term. मेरी शर्तों पर The होगी। people began to listen to God. लोग परमेश्वर को सुनने लगे, Lord, what are your terms? प्रभु तेरी शर्तें क्या हैं? And the Lord said प्रभु ने कहा that you have to take a lamb एक मेमना लेना है, and you have to kill the lamb उसको वध करना है, and you have to collect the blood in a basin और उस खून को जो है एक बेसन में लेना है, and you have to apply the blood on the doorpost and on the lintel. और उस खून को लेकर के अलंगों पर तरह चौखट के लगाना है। And when the angel of death would come, और जब मृत्यु का दूत आएगा, remember, listen very carefully. ध्यान से सुने, He would not see who was living in the house, but he would come looking for the blood. वो ये देखने नहीं आता कि अंदर भीतर कौन कौन है, बल्कि उस खून को देखते हुए आता है। Whether they are good people or bad people, वो अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, they are good looking or bad looking, वो अच्छे दिखते हैं या बुरे दिखते हैं, and they are rich people or poor people, वो गरीब हैं या धनी हैं, educated or uneducated. पढ़े लिखे या अनपढ़ हैं। This angel of death will not see those things. मृत्यु का दूत उन सब बातों को नहीं देखेगा, He will only see whether you are sheltered under the blood of the Passover lamb. वो यही देखेगा क्या उस लांगन पर्व के मेमने के लहू के अधीन हो कि नहीं। And once he sees the blood, जब वो उस खून को देखेगा, he will pass over that house. वो उस घर को लांग करके निकल जाएगा। So that was God's term of redemption. ये परमेश्वर की शर्त थी छुड़ाने के लिए। That is how they were to come out of Egypt. इस रीति से उनको मिस्र में से बाहर निकलना था। Beloved, that happened to each one of us. ये हमें से हर एक के संग हुआ। This lamb was not only for the children of Israel. ये मेमना केवल इजरायली लोगों के लिए नहीं। In the book of 1 Corinthians, पहला कोरिन्थी and chapter 5 and verse 7, 5-7 पद में Paul says, "For Christ, our Passover lamb, is sacrificed for us. Therefore, keep the feast." Let us keep the feast. पहला कोरिन्थी 5-7 पद, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अत्मरित हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा भी जो फसह फसह मसीह है है वो बलिदान हुआ है। मसीह है. For Christ has become the Passover lamb. क्योंकि हमारा भी मसीह जो है वो बलिदान हुआ है। Beloved, he came to this world वो इस पृथ्वी पर आया, and he came to die. मरने के लिए आया, He came to die for our sins. तो अपने हमारे पापों के लिए बलिदान He होने के shed लिए आया, his precious blood. अपना बहुमूल्य लहू बहाने आया। So those who by faith applied the blood of the Lord Jesus on the doorpost and the lintel, they would be people who would be saved. जिन्होंने विश्वास के साथ उस खून को अपने घर के चौखटों पर अलंगों पर लगाया, वो लोग हैं जो बच गए। And those who did not believe in the power of the blood to forgive them, to redeem them, they perished. हाँ, जिनके पास ये विश्वास नहीं था कि परमेश्वर के उस खून के द्वारा जो सामर्थ्य है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, वो नाश हो गए। So beloved, if there is anybody here, प्रियो, यदि हमारे मध्य में कोई ऐसा है, you want to have the forgiveness of sins, आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा किए जाएं, you are tired about the bondage in which you are, आप उस गुलामी से, दासत्व से परेशान हो गए, थक गए, you want to live a good life, आप एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, you want to live a life that is pleasing to God, आप ऐसा जीवन बिताना चाहते हैं जो प्रभु के प्रसन्नता का कारण है, but you have no freedom पर आपके पास कोई आजादी नहीं है, because Satan has already bound you. शैतान ने आपको बांध दिया है। He has put a shackles on your hand, on your life. हाँ, उसने आपको जंजीरों से बांध दिया है। But today, if you believe, लेकिन आज यदि आप विश्वास करें, Lord, I know what I am, प्रभु मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, but I look to you. प्रभु मैं तेरी ओर ताकता हूँ। Many people came to this world. बहुत लोग इस दुनिया में आए, They have delivered wonderful philosophies, अच्छे जो उन्होंने भाषण दिए, but they all died. और वो सब मर गए, And their Kabristan has been found here. और यहाँ पर एक कब्रिस्तान है। But you are the only God प्रभु तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, who came, जो इस पृथ्वी पर who आया, died for my sake, जो मेरे बदले में shed मेरे your पापों के precious लिए blood मरा, for the remission of my sin. और अपना पवित्र खून बहाया मेरे पापों की क्षमा के लिए। Not only Lord, but you rose from the grave, never to die again. बल्कि प्रभु तुम मुर्दों में से जी उठा, फिर कभी मरने के लिए नहीं। Lord, nobody else in this world can ever be compared to the grace, the mercy, the power of the Lord Jesus Christ. किसी को भी प्रभु यीशु मसीह के दया और करुणा का जो प्रेम है उसके साथ तुलना नहीं की जा सकती। I know many of you who are sitting here, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जहाँ बैठे हैं, when you were
slaves to the evil one, जब आप दुष्ट के गुलाम में थे, you would spend this holiday as a gambling with people, drinking with people, doing bad things along with your friends. या तो आप अपने दोस्तों के साथ ताश खेलते हैं, नशा करते हैं, कुछ और उल्टे सीधे काम करते हैं। But the day came in your life, लेकिन एक दिन आया आपके जीवन में, the Lord redeemed you. प्रभु ने आपको छुड़ाया। So beloved, this is the essence of our salvation. प्रियो, हमारा उद्धार का मूल आधार ये है। God was telling Israel, never ever forget प्रभु इजराइलियों से कह रहे, कभी इस बात को मत भूलना that you are bondmen, कि तुम गुलाम थे, but the Lord redeemed you. लेकिन प्रभु ने तुमको छुड़ाया। How did He redeem us? हमको कैसे छुड़ाया? By the power of the blood of Jesus. हाँ, प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। In the book of First Peter, पहला पत्रस chapter 1, पहला अध्याय verses 18 and 19. 18-19 पद में, You are not redeemed by silver or gold, but by the precious blood of the Lord Jesus Christ. तुम सोने और चांदी से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम छुड़ाए गए। First Peter chapter 1, verse 18 and 19. पहला पत्रस पहला अध्याय 18-19 पद। पहला पत्रस पहला अध्याय 18-19 पद। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। So beloved, those who have been redeemed by the blood of Christ, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए, there is a response, should be a response from your side. हाँ, आपकी ओर से जो है उसका जवाब होना चाहिए। People give us a glass of water. लोग एक गिलास का पानी हमें देते हैं, We look at them and say thank you. हम उनको धन्यवाद देते हैं। But here's a God who has not spared His Son, but given Him to us so that He may become your Redeemer. यहाँ पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं रख छोड़ा, बल्कि उसको हमारे लिए दे दिया ताकि हमें छुड़ाए। The greatest gift, the gift of forgiveness. सबसे बड़ा वरदान जो पापों की क्षमा का है, Greatest gift, the gift of eternal life, अनंत जीवन का वरदान given to us through Lord Jesus Christ. हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। In Romans 6:23, रोमन 6:23 में लिखा है, the Bible says, बाइबल बताती है, for the wages of sin is death, पाप की मजदूरी मृत्यु है, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वरदान प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है, मुफ्त में है। For many years in our life, बहुत सारे साल जो हमारे जीवन में we था, have been carrying this burden of sin on our backs. हम इस पाप के बोझ को अपने पीठ पे उठाए जा रहे हैं। But the day came in our life, पर एक दिन आया हमारे जीवन we में, came to Calvary. हम कलवरी के क्रूस के We पास आए, saw the Lord Jesus Christ. हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, We looked at Him. हमने उसको देखा। We said, Lord, I should have been crucified on this cross. हमने कहा कि प्रभु मुझे उस क्रूस पे चढ़ाया जाना था। I was the one bound with the shackles of sin. मैं तो पाप के बंधन से बंधा हुआ था। Despite of my best efforts, I could never ever free myself and enjoy your salvation. मैं अपनी पूरी कोशिश से उस पाप के बंधन से अपने आप को छुड़ा करके आपको महिमा नहीं ला सका, But you gave it to me free. लेकिन प्रभु आपने मुफ्त में मुझे दे दिया। When my son was small, जब मेरा बेटा छोटा था, and when I used to bring something, जब मैं कुछ लेकर के आता था, and he said, Paul, डैडी ने कुछ लाया है, फ्री में मिला है हमको. कहता पिताजी जो है कुछ लेकर के आए, बोले और बिल्कुल फ्री में लेके आए, मुफ्त में लाए। So excited. इतना अधिक खुश थे। Then the both brothers used to enjoy. दोनों भाई लोग आपस में आनंदित होते थे। We want to tell you this यही morning. आज सुबह हम आपको कहना चाहते हैं, The redemption, freedom from slavery आपको फ्री में मिल रहा है. छुटकारा पाप के दासत्व से, गुलामी से आपको मुफ्त में आजाद किया गया है। So beloved, shall we be not be grateful to the Lord? हम क्या प्रभु के लिए आभार प्रकट नहीं करेंगे? Think for 1 second एक क्षण भर के लिए सोचें that you were a bondman, a slave, as in the land of Egypt. मिस्र देश में आप बंदवाई में थे, गुलामी में थे, दासत्व में थे, We were in the control of the evil one. दुष्ट के अधीनता में थे। Many people, they find it hard to hear that. बहुत सारे लोग उसको सुन करके बड़ा कठिन लगता है, But I am fully convinced. और मैं अच्छी तरह से इस बात से सहमत हूँ। How can a man cut his wife into 15 pieces and put them in the fridge? कैसे एक आदमी जो है अपनी पत्नी को जब 50 टुकड़े करके उसको फ्रिज में डाल देता है? How could a woman kill her husband, put her into a plastic drum and put cement and harden it? और कैसे एक पत्नी जो है अपने पति को जो है मार करके
एक डब्बे में डाल करके, ड्रम में उसे जो है बर्फ में डाल के, सीमेंट डाल करके जमा दे। Beloved, no human being could ever do that कोई मनुष्य, साधारण मनुष्य ऐसा काम नहीं कर सकता unless they yield themselves to the total control of the evil one. जब तक उस दुष्टता की अधीनता में संपूर्ण तौर से अपने आप को दे ना दें, तब तक ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। You might not have gone to that extent, but there is evil in our heart. आप उतने दूर तक तो नहीं जाओगे, लेकिन आपके दिल में बुराई है। So you have freedom in the Lord Jesus Christ. लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आपके पास आजादी है। Shall we read that verse once again, एक please? बार फिर हम पढ़ेंगे इस पद को। The book of Deuteronomy, chapter 20 व्यवस्था विवरण 4. 24 अध्याय and verse 18. 18 पद। Very simple. व्यवस्था विवरण 24 अध्याय 18 पद, बड़ा साधारण से हम सब एक साथ All मिलकर together. पढ़ेंगे। All together, please. व्यवस्था विवरण 24 18 सब एक साथ। And thou और shalt इसको remember स्मरण रखना that thou wast a कि तू मिस्र bondman देश in में दास Egypt, था, and the Lord और thy तेरा God परमेश्वर redeemed यहोवा thee. तुझे वहां से छुड़ा लाया है। Therefore I इस कारण मैं command तुझे thee ये to आज्ञा submit. देता हूँ। Thou wast a bondman. हाँ, तो एक दासत्व में गुलाम The था, Lord redeemed you, प्रभु ने तुझे छुड़ा लिया है। and it's our duty to give thanks to him. हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें। There आभार were प्रकट 10 करें। lepers who were cured, 10 कोढ़ी थे जो चंगे हुए, and 9 of them went to their homes. 9 के 9 अपने घर चले गए। But one person said, एक व्यक्ति ने कहा, see, I am a Samaritan. मैं तो एक सामरी हूँ। In the book of John's Gospel, chapter 4 and verse 9, we read, the Jews and the Samaritans, they do not have good relation. योना 4 अध्याय में पढ़ते हैं, यहूदी और सामरी का आपस में अच्छा संबंध नहीं है। We will read that verse for you. हम उसको पढ़ेंगे। John chapter 4 and verse 9. योना की इंजील उसका 4 अध्याय, They don't have any dealings. 4 अध्याय 9 पद। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। हाँ, किसी प्रकार के व्यवहार नहीं रखते हैं। हाँ, यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। So the Samaritan said to himself, leper, इस सामरी कोढ़ी ने अपने आप से कहा, Lord Jesus is a Jew, प्रभु यीशु मसीह तो यहूदी है and I am a Samaritan, और मैं तो एक सामरी हूँ, and I should have been despised by him मुझको तो उसे तुच्छ समझना था। for the leprosy that I suffer from, जो गुलामी, जो कोढ़ मेरे जीवन में है, and to make things worse, I am a Samaritan. और हम मुझको दूर करने के लिए मैं एक सामरी भी हूँ। But this Jesus, he did not show any discrimination because the other 9 were Jews. He could have healed only those, and he could have left me out. पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ पक्षपात नहीं किया, क्योंकि मैं सामरी था, बाकी सब यहूदी थे, लेकिन उनको ठीक करता, मुझे छोड़ देता। God so loved the world, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम loved किया, all the people of the world, उसने संसार के तमाम लोगों से प्रेम किया, and he touched me and healed me. और मुझको धोया और मुझे चंगाई दी। He came back to Jesus, वो वापस यीशु के पास आया, and he fell down at his feet. उसके चरणों में गिर पड़ा। And the Lord Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा, where are the 9? बाकी 9 कहाँ गए? Were they not all healed? क्या वो सबके सब चंगाई नहीं प्राप्त नहीं किया? Were they not all who were redeemed? क्या वो सबके सब छुड़ाए नहीं गए? Were they not bondmen at one क्या time? एक समय वो गुलाम नहीं थे? But they have not come to give me a word of thanks. धन्यवाद देने नहीं आए। Beloved, by your worship, प्रियो, अपनी आराधना के you द्वारा offer thanks to the Lord. हम प्रभु को धन्यवाद देते You हैं। look back on your own life अपने जीवन के पृष्ठभूमि को देखें and try to remind yourself और अपने आप को स्मरण दिलाएं, how great things the Lord has done for you. कितना महान कार्य प्रभु ने हमारे पक्ष में किया है। So please keep these few thoughts in your mind. इन विचारों को We'll give the first opportunity, of course, Sunday school teachers, and then maybe online, and then we come back to this congregation. The first opportunity for those who have not worshipped the Lord, at least in 3 months. पिछले 3 महीनों से यदि किसी ने आराधना नहीं किया है, तो वो लोग आराधना करें, या दूसरे शब्द में जिन्होंने पहले कभी आराधना नहीं किया, पहले वो आराधना करें। This great servant of God, Brother Baksing, भाई भक्त सिंह जब प्रभु के महान दास थे, he used to say, वो यूं कहते थे, the fastest way for a believer to grow in spiritual life is by taking part in worship. जो सबसे तेज रफ्तार से यदि मसीह में बढ़ना है, तो केवल एक ही तरीका है कि प्रभु को आराधना करें। We'll begin today. और वहां से हम अब शुरू करेंगे। तो सबसे पहले संडे स्कूल के शिक्षक और बच्चे आराधना करेंगे।